Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay in front of you again with the same platform, Live Physics VK channel with the same topic that we were dealing, and we are going to continue our class 11 topic. As you all know that we were dealing on the chapter named as the laws of motion, and in the laws of motion we have completed up to the, if I give you the past or the previous lecture what we discussed about the motion in connected bodies in various shapes, like motion in connected bodies when we connect horizontally, vertically, pulley, mixture, and I hope you all have completed the assignment related to that. Okay, the assignment, if I give you the specification, so I have picked the previous assignment from various books. So the previous assignment was the mixture of the two important book, एसएल अरोड़ा डेफिनेटली जहां से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो आपके वो अवेलेबल भी हो जाता है, बट द सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जहां से वो चीज आपके सामने अवेलेबल होगी और जो वन ऑफ द माय फेवरेट बुक वाज एचसी वर्मा. सो दैट असाइनमेंट के जो नीचे वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एचसी वर्मा से अवेलेबल है. सो आई होप अगर आप उन्हें डील कर पाए, आप उनके बारे में आइडिया डिस्कस कर पाए, डेफिनेटली यू आर in the motion in connected bodies. And if you again found any difficulty, please do not hesitate to ask. Hesitation मत रखिए, because if you take the hesitation now, अभी अगर आपने hesitation रखे तो ये चीज आगे जाके इकट्ठा ही होगी. आपके problems in future जाके कम नहीं होने वाले unless until you will not clarify from your teachers. So please clear it now. Now, as you discussed कि हमने motion in connected bodies तक done किया. So, laws of motion basically ये one complete unit है, एक पूरा का पूरा unit है, but I want to specifically divide this unit into two parts. मैं इस यूनिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहता हूँ. मैंने दो अलग अलग सेक्शन बांट लिए. तो एक सेक्शन जो अब तक हम लोगों ने किया, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, एवरीथिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल ऑफ द गन, एवरीथिंग. फिर उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, सो वो हमने किया. बट अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट को डील करने जा रहे हैं, एंड दैट सेकंड कॉन्सेप्ट जिसको हम ज्यादातर डील करेंगे, जिसको अब तक कंसीडर ही नहीं किया था मोशन में. What was that quantity that we haven't considered till now in while dealing with the motion, and that consideration or that quantity was friction. हमने फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं की थी अब तक, तो आज हम लोग उसे ही स्टार्ट करने वाले हैं. सो यू कैन से वी आर स्टार्टिंग विद, we are continuing with laws of motion, but along with the laws of motion you can say we are dealing with, or we are going to start part number 2 of the laws of motion, and today we will discuss about the friction. तो आज आपका मोस्टली काम इस लेक्चर में theoretically, understandingly और some of the mathematically होगा. So first of all, friction. I hope you all are familiar with that, और आप लोगों ने इस वर्ड के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, and you all know that. So that friction is that whenever there is relative motion, what? Relative motion between two bodies, then a force acts tangentially. एक फोर्स लगेगा, वो भी कहां पे? Tangentially, along the tangent. A force acts tangentially opposite to the motion of the body. Opposite to the motion of the body. Known as, what you call that force which opposes the motion of the body? Known as frictional force. उस फोर्स को आप लोग क्या बुलाने वाले हैं? What you are going to call that force? We are going to call that force as a frictional force. For an example, if I give you a diagram for that, let's suppose we have a body here, and we are applying the force on the body. हम लोग अपनी बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं by either pushing or by either pulling. तो मैं उसको राइट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. So this is my what? This is my pull force that I applied, and I will try to move that body over the surface.
मैं इस बॉडी को सरफेस के ऊपर मूव करवाना चाहता हूं। टिल नाउ जब तक हम लोगों ने अब तक जब भी हम लोगों ने बॉडी को सरफेस पे मूव करवाया, स्लाइड करवाया, but till now we have taken one assumption that we always consider the surface as smooth. हम सरफेस को स्मूथ कंसीडर करके चलते थे, and if the surface is considered as smooth, in that case the value of the friction force would be very small. सरफेस जितना स्मूथ होगा आपका फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही कम होगा, ये भी आप जानते हैं। और अगर ऐसा है तो हम लोग अब तक फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते आए थे, बट नाउ वी विल कंसीडर, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम भी है तो भी हम लोग अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर और उसे एनालाइज करने जा रहे हैं। सो एक्चुअलिटी में तो लगेगा। सो फ्रिक्शन जब हमने इस सरफेस के ऊपर बॉडी को पुल किया तो डेफिनेटली अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट at a point along the tangent direction. So this is your tangential direction. Tangential direction, but tangential भी वहां पे जहां पे आपका point of contact है, जहां पे आपका body, this is your body and this is your surface. So the point where your body and surface are in contact, और वो ये point है, This is your contact point. तो ये आपका सरफेस हो गया एंड यहाँ पे आपका सरफेस के साथ बॉडी कांटेक्ट में है, ये पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मींस ये फोर्स तभी लगेगा जब बॉडी और सरफेस या टू डिफरेंट बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा, इफ देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। If you are not imagining the physical contact between them, definitely there would be no friction is considered. अगर बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन अभी नहीं होगा। ओके, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन को अभी के लिए स्लाइड में रखिए, क्योंकि एयर नॉट इज अ सॉलिड पार्ट। तो अब तक हम जिस भी बॉडी को, अगर मैं आपके माइंड में क्लियर आउट करूं, तो अब तक जो हमने पढ़ा है मोशंस हम बॉडीज पे लगा रहे हैं। What type of bodies that we are talking about जिस पे हम मोशन करेंगे? We are talking about the solid state bodies. हम solid state bodies को मूव किया है, उस पे न्यूटन के लॉ अप्लाई किए, तो जो भी अब तक किया है आपने, मोशन किया, जैसा भी प्रोजेक्टाइल, एनीथिंग, हमेशा एक सॉलिड बॉडी पे कंसीडर किया गया है, नॉट ऑफ अ लिक्विड स्टेट, नॉट ऑफ द गैसियस स्टेट। उनको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, क्योंकि उनका फोर्स लगाने के बाद जो बिहेवियर है, लिक्विड पे लगाना या गैस पे लगाना, तो उनके बिहेवियर हमारे सॉलिड के बिहेवियर से थोड़े अलग है। अगर आइडिया दूं क्यों? क्योंकि यू ऑल नो दैट सॉलिड एंड गैसियस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन में होते हैं, दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थोड़ा सा वाइडली स्प्रेड भी होते हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो आपका लिक्विड तो फ्लो करता है, बट उसके साथ साथ उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आता है। सेम फॉर द गैसेस। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है कि जब आपने एक सॉलिड पेन को फोर्स लगाया तो पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज इट इज है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं आया, बॉडी आगे की तरफ मूव की। ठीक है, तो फोर्स का वो एजेंसी पढ़ रहे हैं जो सॉलिड पे लगेगा और जो बॉडी की स्टेट चेंज करेगा, ये हमारा मोटो है। ठीक है, ओके, सो विद दैट नोट हम लोगों ने सॉलिड बॉडी को लगाया फोर्सेस, और ये एक तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट फोर्स है, और यही हमारा कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। सो द सिंबल ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द स्मॉल एफ। तो हम लोग स्मॉल एफ यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कैपिटल एफ तो हमारा अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट यानी एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर विद द डेफिनेशन? ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो इसके बारे में मैं 2 पॉइंट लगा दूं, सो इट इज कांटेक्ट फोर्स एक तरीके से, एंड इट ऑलवेज acts where opposite to डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस तरफ आपने मोशन लगाया है ये हमेशा उसके अपोजिट ही लगेगा, यानी अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हो फ्रिक्शन वुड बी लेफ्ट साइड, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, इफ देयर बोथ द बॉडीज शुड बी सॉलिड और दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए। गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन। नाउ विद अ क्विक मैनर अब मैं आप लोगों के साथ एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को इफ माइट यू हैव डिस्कस, इफ यू माइट गो ऑन विद दैट तो इट वुड बी बेटर, बट अगर नहीं है तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, एंड दैट थिंग इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो ये सवाल बहुत बार उठता है, so many times student raises this question, and this question is sir what is the basic cause, क्या मेन कॉज क्या है, कारण क्या है कि फ्रिक्शन क्यों हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब तक तो हम लोगों ने आपको केवल न्यूटन के फर्स्ट लॉ के रेफरेंस में दिया। हमने कहा कि बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है। इफ द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन, तो हम चाहते हैं कि उसकी स्टेट ना बदले, तो स्टेट नहीं बदलने के लिए वो अपने कैरेक्टर को अपोज करेगा, एक इनर्शिया फैक्टर लेके आता है, और कहीं ना कहीं वो इनर्शिया जिसे जो कि इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द बॉडी, वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के बनाने में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और ये चीज भी कंसीडर होगी आगे। बट बात ये है कि जब भी हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन क्यों आए, सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस ऐसा क्या करता है कि जिस वजह से आपको फ्रिक्शन यानी आपके मोशन को अपोजिशन हो जाती है। तो लेट्स टॉक टू और लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट, इस छोटे से क्वेश्चन, छोटा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फ्रिक्शन चाहते हैं तो हमारे पास टू बॉडीज होनी चाहिए जो आपस में कांटेक्ट होंगी। सो लेट्स सपोज आई हैव फर्स्ट बॉडी, ये मेरा फर्स्ट बॉडी, द फर्स्ट बॉडी, बॉडी वन रफ सरफेस रफ है, ओके। और अगर आपका सरफेस स्मूथ भी है, इफ वी टॉक अबाउट अ स्मूथ सरफेस, सो एवरी सरफेस हैज द zigzag ओवर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मींस उसका जो ओवर द सरफेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अनइवन होता है, 100% प्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन होंगे। हाँ, अगर हम स्मूथ सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो हमें दिखाई देंगे, बट अगर हम नॉर्मल आई से भी देख पा रहे हो तो हम उस सरफेस को रफ बोलना शुरू करते हैं। यानी हर सरफेस के ऊपर आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो इन बैंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनइवन तो होगा। हाँ, बस ये है सरफेस जितना स्मूथ होता जाएगा ये अनइवननेस उतनी ही कम होती जाएगी। नाउ वी हैव द अनदर बॉडी, हमारे पास एक दूसरा बॉडी है, बॉडी नंबर 2, जो कि वो भी अनइवन ही था, means rough body number 2, and this is the physical contact between them। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है। ओके, नाउ both the bodies, to represent both the bodies I use the two different color of the pen। why I want to indicate that कि दोनों बॉडीज अगर डिफरेंट मटेरियल भी हो तो भी चलेगा। सो बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों अलग अलग मटेरियल की हो सकती हैं। मान लीजिए आप किसी भी बॉडी को फ्लोर के ऊपर चला रहे हो तो फ्लोर का मटेरियल अलग है, और जिस बॉडी को आप उसके ऊपर स्लाइड कर रहे हो, मान लीजिए आप वुड को स्लाइड कर रहे हो, आयरन पीस को स्लाइड कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, वो एक डिफरेंट मटेरियल है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज, इस स्टोरी को भी सुनना, मैं बोलता भी जाऊंगा लिखता भी जाऊंगा, व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज are in physical contact, then at microscopic level हमें नहीं दिखाई देता, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें then they are in contact in lesser area as comparison to seen from naked eyes। यानी जब भी हम लोग अपने उन दोनों सरफेस को नेक्ड आईज से देखते हैं, जब भी हम उसे नॉर्मल आईज से देखेंगे तो हमें तो लगेगा बॉडी 1 बॉडी 2, सर ये तो फिजिकल कांटेक्ट देखो पूरे सरफेस पे टच हो रहे हैं, बट जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि वो एक्चुअल में हर जगह कांटेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के सरफेस 100% प्लेन नहीं है, अनइवन है।
तो जब अनइवन बॉडीज है अनइवन सरफेस को टच में लेके आओगे तो वो केवल पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही कांटेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो thus this स्मॉलर अटैचमेंट, ये जो स्मॉल है, thus this smaller contact will create high pressure। तो कांटेक्ट एरिया क्या है, कम है, तो कांटेक्ट एरिया अगर कम होगा तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। यू ऑल नो दैट प्रेशर इज ऑलवेज बीइंग फोर्स बाय एट। तो फोर्स क्या लग रहा है, बॉडी का वेट, ऑब्वियस सी बात है। तो बॉडी 2 का जो वेट है, जो कि ऊपर है, तो वो अपना वजन नीचे की तरफ लगाएगी और वही हमारे लिए बॉडी 1 के ऊपर सरफेस, बॉडी 1 के सरफेस पे फोर्स लगा। बट बॉडी 2 और बॉडी 1 एक्चुअल में जो हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम एरिया पे कांटेक्ट है, यानी बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं या छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पे वो कांटेक्ट में, जो मैंने ट्राई किया है यहाँ पे डायग्राम में। और अगर ये कांटेक्ट एरिया स्मॉल होगा तो वहां पे प्रेशर इफेक्ट कम होगा। thus molecules of both bodies will try to fuses, मतलब combine, or you can say attracted towards each other। तो दोनों बॉडीज के जो कांटेक्ट हैं, यानी जो दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, जिनके ऊपर वेरी हाई प्रेशर लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन फ्यूचर फिजिक्स पार्ट 2 में आएगा, बट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। दैट पॉइंट इज दैट व्हेनेवर the two molecules are in contact with each other, जब भी दो molecules एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, then there is always force of attraction, यानी जिसे हम लोग intermolecular forces बुलाते हैं। तो एक थोड़ा सा इससे हटके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जब आपके पास दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 ये मॉलिक्यूल 2, और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। जैसे ही मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 के पास आना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव। दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ये दिखाता है फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एज आई टोल्ड यू, अभी बेटा फिजिक्स स्टार्ट ही हुआ है, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, बट एक पॉइंट है जो यहाँ पे रेलिवेंटली डाउट में लाता है, बट उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बहुत दूर है तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लगभग 0 है, पर जैसे जैसे वो पास आते जाते हैं, उनका पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होता जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जितना नेगेटिव होता रहेगा आप उतने ही अट्रैक्टिव होते जाओगे, बट एक लिमिट तक। इसके बाद भी अगर आप इस मॉलिक्यूल को इसके पास लेके आते हो, मॉलिक्यूल 1 ये रहा, मॉलिक्यूल 2 ये रहा, मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 1 के पास आ रहा है, इससे भी ज्यादा अगर आप पास लेके आते हो तो अब पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव मतलब लेस अट्रैक्टिव, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मींस रिपल्सिव कैरेक्टर को दिखाएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जब बहुत दूर है आपस में, तब आपका ना तो अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो लाइन पे। पर जैसे जैसे एक लिमिटेड डिस्टेंस रहता है तब वो पहले अट्रैक्टिव शो करता है, बट अगर आप उसे भी और भी ज्यादा पास ले आओ तो उसमें रिपल्शन आती है। और उस रिपल्शन फोर्स को आप लोगों ने सुना होगा 11th क्लास केमिस्ट्री में, वी कॉल दैट एज अ वेन डर वाल फोर्सेस, मींस वेन डर वाल रिपल्सिव फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे। मतलब ये डिस्टेंस फर्मी में है, ओके, फर्मी यानी 10 की पावर -15 ये न्यूक्लियस में होता है, और जब मॉलिक्यूल्स में आते हैं तो ये रेंज 10 की पावर -9 से लेके 10 की पावर -12 मीटर तक। 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पीको, यानी इस डिस्टेंस तक की बात कर रहा हूं। तो जब मैं बात कर रहा हूं दो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस इतना चल रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस लगभग इतना है, ठीक है।
तो अब जो दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत पास में होंगे, मतलब पास में आते जाएंगे तो अट्रैक्टिव होते जाएंगे और repulsive। और ये प्रॉपर्टी जो है वो हर मॉलिक्यूल पे लागू होती है। When I say each and every molecule, it means I am talking about same kind of molecule and different kind of molecule, सब पे लागू। यानी अगर आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, पानी का बूंद है, एक और पानी का बूंद है, तो दो वाटर ड्रॉप है, दोनों को कांटेक्ट में लाइए तो डेफिनेटली जो फर्स्ट वाटर ड्रॉप है उसमें भी H2O मॉलिक्यूल है, सेकंड में भी H2O मॉलिक्यूल है, तो दोनों सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगे। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और इस टाइप के फोर्स को हम लोग बुलाते हैं एडहेसिव फोर्स। ओके, तो यहां पे दो टाइप के फोर्सेस होंगे, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इस फोर्स को सेम काइंड ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, मैं गलती से बोल गया, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को बुलाएंगे एडहेसिव फोर्स। यानी दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में जब अट्रैक्ट होते हैं तो उसे एडहेसिव का नाम देते हैं, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उसे आप लोग कोहेसिव का नाम देते हैं। So there are two types of the forces which are acting between them, adhesive force and cohesive force. Okay, sorry beta, my mistake, sorry, for the same kind it is cohesive and for different kind it is adhesive, my mistake है, initially I was writing sick। so जब आपके same kind of molecule है so then it would be a cohesive force, और अगर different kind है तो वो adhesive force। जैसे कोहेसिव फोर्स का तो मैंने एग्जांपल दे दिया जब वाटर मॉलिक्यूल्स हो, अब एडहेसिव का एग्जांपल दे दूं। एडहेसिव एग्जांपल, द मार्कर इंक विद द सरफेस ऑफ द व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है तो उसका अपना एक मॉलिक्यूल है, और मार्कर की इंक के अपने भी एक मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो देखो अट्रैक्टेड हो चुके हैं, वो यहीं पे है, यहाँ पे है। ओके, वो डिसाइड करता है, जरूरी नहीं कि हर बार दो डिफरेंट बॉडीज के मॉलिक्यूल को पास में लाए तो हर बार अट्रैक्ट ही हो। तो अगर हम मार्कर को यहाँ रखें तो अट्रैक्ट तो नो, ओके, वो वर्टिकली नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द वेट, क्योंकि वो ज्यादा है। तो अगर आपका वेट आपका जो वेट है वो आपके किसके मॉलिक्यूल, किसके सरफेस, आपके मार्कर के मॉलिक्यूल्स और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स उससे ज्यादा है, इस वजह से वो आपको नीचे गिरा देता है। बट यहाँ पे ईच एंड एवरी बॉडीज में ये सब होता है, और हम ये नेचर पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स का नेचर कहाँ है। तो कुछ जगह पे हमें कोहेसिव स्ट्रॉन्ग लगता है, कुछ जगह पे हमें एडहेसिव स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो ये होता है, ये हर बार होता है। जैसे आप लोग पेंट करते हैं ऑन दी वॉल, अब आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम लोग वॉल के ऊपर पेंट करते हैं, वॉल पे या किसी भी आयरन के सरफेस पे, तो जब हम पेंट करते हैं, और अगर आप देखो एक बार स्टील पे पेंट करके देखना, तो पेंट वो तरीके से या उस तरीके से ग्रैपिंग नहीं बना पाता जितना वो आयरन और अदर मटेरियल पे बना पाता है। So that shows the force of adhesiveness is different for different material, वो हम लोग देखेंगे आगे। बट यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब वो हाई प्रेशर लग रहा है उन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे, वो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, बाउंड हो गए, बॉडी 1 और बॉडी 2 के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए। नाउ टू मूव both bodies relative to each other, अगर हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करना चाहते हैं, मतलब बॉडी 1 को वहीं पे रख दो, बॉडी 2 को मूव कर दो, या बॉडी 2 को वहीं रख दो, बॉडी 1, मतलब दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर मैं बॉडी 2 को मूव करना चाहता हूं बाय अप्लाइंग द फोर्स, बॉडी 1 स्टिल है, तो डेफिनेटली अगर बॉडी 2 को मूव करना है, आई हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड डेफिनेटली, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट हो चुका है, तो मुझे इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा एनर्जी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ओके, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं मूव करने में लगा रहा हूं वो तो है, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स मुझे चाहिए होगा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो मैं चाहता हूं बॉडी 2 राइट की तरफ मूव करे, बट ये बॉन्ड है वो मुझे स्टिल वहीं पे पकड़ के रखना चाहते हैं, तो मुझे इन्हें ओवरकम करना पड़ेगा।
तो मुझे यहाँ पे क्या इफेक्ट दिख रहा है कि मैं बॉडी 2 को अगर आगे मूव करवाना चाहता हूं तो इस जगह पे एक इफेक्ट लग रहा है जो मुझे यहीं पे रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी यहीं पे रखने का कोशिश मतलब मेरे मूवमेंट के अपोजिट ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए मुझे बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तभी मैं बॉडी 2 को बॉडी 1 के रिलेटिवली मूव कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, द बॉन्ड बिटवीन बोथ द बॉडीज बिकम वेरी हाई वैल्यू, बहुत स्ट्रांग होगा, और फिर हम अप्लाई करते तो हम वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट बॉन्ड, और अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाए तो इसका मतलब हम चाहे फिर कितनी भी ताकत लगा ले, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो जमीन पे रखी हुई है और हम पूरा मतलब बहुत हैवी बॉडी है, कोई पत्थर है आपके घर में, बॉक्स होगा, अलमीरा होगी जो फुल ऑफ लगेज है, पूरा सामान भरा हुआ, हम फोर्स लगा रहे हैं बट वो स्लाइड ही नहीं हो रही, बिकॉज कि वहां पे प्रेशर इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट अलमीरा एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट फ्लोर इतना स्ट्रांग हो गया कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो उन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। सो यानी हर बार जब भी दो बॉडीज को एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं तो बॉडीज में बॉन्ड बनेंगे और हमें उन बॉन्ड को ब्रेक करना है। सो नाउ टू मूव द बॉडी रिलेटिव टू ईच अदर, द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द बॉन्ड बिटवीन molecules have to break, उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, they have to break, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। thus we experience an opposition to our motion, हमारे मोशन के अपोज में हमें एक अपोजिशन लगेगी, This is known as friction. इस अपोजिशन को आप लोग क्या बुलाएंगे, फ्रिक्शन, and this is the scientific and well defined cause of the friction. ये फ्रिक्शन का well defined कारण है, कॉज है कि यही एक कारण है जिस वजह से फ्रिक्शन एग्जर्ट करता है, और ये बॉन्ड बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपने तोड़ दिया तो नहीं होगा, अब अगर आपने तोड़ दिया है और अब आप मूव करने लगे, यानी बॉडी मूव कर रही है, तो ये बॉन्ड बार बार बनते रहेंगे क्योंकि प्रेशर जो है वो हमेशा नीचे लगता रहेगा, वेट हमेशा नीचे लगता रहेगा। बट एक बार मोशन में आने के बाद ये जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को बनने में उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा बॉन्ड बनेगा तभी आप तोड़ दोगे। तो यानी जब बॉडी एक बार मोशन में आ जाए, एक बार मोशन में आ जाए, जैसे ही वो मोशन में आ गई एक बार, फिर आपको उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा जितना वो जब रेस्ट में थी तब तोड़ने में लगा। इसलिए जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो स्टार्टिंग में फोर्स ज्यादा लगता है उसे मूव करने के लिए, यानी शुरुआत में फ्रिक्शन ज्यादा है, शुरुआत में अपोजिशन ज्यादा है, मतलब शुरुआत में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बट वंस इट गेट इन मोशन, जैसे ही वो एक बार मोशन में आ गया, फिर वो फ्लो टूटता जाता है। कहते हैं ना, फ्लो नहीं बन पाया बॉन्ड बनने का, बॉन्ड बनता है हम तभी तोड़ देते हैं। तो यानी मोशन में आने के बाद भी बॉन्ड बनेंगे, मोशन में आने के बाद भी फ्रिक्शन होगा, यानी अपोजिशन होगी, बट वो जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है जो मोशन में है वो स्टार्टिंग वाले फ्रिक्शन के कंपैरिजन में लेस होगा, और इस चीज को अभी हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन द कॉज अलोंग विद द डायग्राम प्लीज। ओके, so we have discussed the friction and we have discussed the causes of friction. Now we are going to discuss the third type, or third thing is the types of friction. So frictions is being mainly classified on the basis of state. यानी हम लोगों ने फ्रिक्शन को स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो स्टेट दो ही टाइप का है। The first type of state is the rest and the second type of state is the motion. यानी एक जब आप रेस्ट पे हैं और दूसरा स्टेट जब आप मोशन स्टेट में। तो on the basis of that we classified. So types of the friction is being two types. तो आप बोल सकते हो हमारे पास फ्रिक्शन दो टाइप के हैं। So टाइप यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। The first one is static friction. Devna, static word means rest. So the friction which acts on body when it is in the state of rest.
इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब भी बॉडी रेस्ट स्टेट में होगा, रेस्ट में, तब जो फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अगर आपका कोई बॉडी स्टिल है, मान लीजिए आपके घर में अलमीरा है, सो अलमीरा एट योर होम इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो डेफिनेटली जो उसका वेट है वो प्रेशर लगा रहा है, जैसा हम लोगों ने अभी कॉज ऑफ फ्रिक्शन में डिस्कस किया, टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लोर, और वहां पे एक बॉन्ड बनेगा जो कि उसे बना के रखा है। तो रेस्ट में है तो वो बॉन्ड है। अब हमें ये पता करना है कि वो फ्रिक्शन कितना है रेस्ट स्टेट में। तो इस बात पे एक और पॉइंट जो यहां पे जाएगा, दैट द अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो आपको रेस्ट में रखना चाहिए, सो द अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपको अपोज ही करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते जाएंगे, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। यानी अगर बॉडी रेस्ट स्टेट में है, रेस्ट में मतलब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, एक बॉक्स है, तो अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही होगा। सो द सिंबल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज Fs। Why I explain, ऐसा क्यों? तो अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया ऑन एनी बॉडी, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट। तो फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो आपकी स्टेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो बॉडी रेस्ट पे था, तो लेट सपोज आई अप्लाई 10 न्यूटन, मान लीजिए मैंने लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, तो डेफिनेटली अभी भी हमारी बॉडी रेस्ट पे ही है, यानी बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। जब आप अप्लाई करने से पहले भी रेस्ट में है और अप्लाई करने के बाद भी रेस्ट में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक बॉडी रेस्ट स्टेट के अंदर है। तो अलमीरा है, अलमीरा को मूव करने के लिए चाहिए आपको मान लीजिए 100 न्यूटन, और आपने जस्ट अभी लगाया 10 न्यूटन। मींस लेट सपोज अ स्मॉल बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द हैवी अलमीरा। तो एक छोटा बच्चा हैवी अलमीरा पे फोर्स लगा रहा है, तो डेफिनेटली दैट स्मॉल बॉय कुडंट बी एबल टू जनरेट 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, वो नहीं कर पाएगा। तो वो तो 10 न्यूटन लगा रहा है। अब उस बच्चे ने तो 10 न्यूटन लगाया, अब सवाल ये उठता है कि उस स्मॉल बॉय ने जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया वो फोर्स कहां गया, उस फोर्स ने क्या हुआ, उस फोर्स का हुआ क्या? एंड योर आंसर इज कि वो जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया जो कि रेस्ट स्टेट में था, तो उतना ही बॉडी ने एक स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट कर दिया जो कि उसके अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूडली वो भी उतना ही होगा 10 न्यूटन। और इस वजह से उस बॉय का वो 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0, और अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में, यानी उस बच्चे ने 10 न्यूटन लगाया बट उसके 10 न्यूटन से बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। Why? कि उस 10 न्यूटन लगाने से बॉडी ने अपने अंदर 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट किया। So the static friction is being directly proportional, or you can say directly equal to the external applied force. Done? But अब उस स्टूडेंट को थोड़ा सा enhance करते हैं। फोर्स है 10 न्यूटन, अब मान लीजिए लेट सपोज वो बॉय यंग बड़ा होता जा रहा है या फिर किसी दूसरे एल्डर ब्रदर को लेके आते हैं उसके को, तो उसने लगाया 15 न्यूटन। मैंने बताया था अलमीरा को मूव करने के लिए कितना चाहिए, 100 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड बॉय आया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से 100 न्यूटन। ऐसे करते करते आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हो 50 to 60, 70, 80, 90, 100 न्यूटन। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया तो डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन के जस्ट इक्वल। बट 100 न्यूटन वो फोर्स है, जैसे ही 100 न्यूटन से थोड़ा सा भी आगे होगा 100.1 न्यूटन, बॉडी क्या करना शुरू कर देगा, बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हुआ, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 न्यूटन। यानी इस फ्रिक्शन की वैल्यू के बाद, यानी इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या करेगी, बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में आएगी।
बॉडी मोशन में नहीं आई है अभी। ओके, तो जब आपने 100 न्यूटन लगाया तो बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी क्या है, जस्ट अबाउट टू मोशन, बस मोशन में आने ही वाली है। हाँ, 101 101 या 102 आपने फोर्स लगा दिया, 101 न्यूटन लगा दिया तो बॉडी मोशन में आ गया। तो हम अब उस लिमिट का बात कर रहे हैं जहां तक हमारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और वो लिमिटिंग या फिर वो लिमिट क्या है, 100 न्यूटन फॉर दैट एग्जांपल। सो वी कॉल, और हम स्टैटिक का ही एक और वर्जन आगे जाके पढ़ते हैं, वी कॉल दैट फ्रिक्शन एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यू कैन से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट स्टेट में है, व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। बट जब बॉडी रेस्ट पे और आप लगाते गए तो जितना एक्सटर्नल लगाता गया उतना स्टैटिक, क्योंकि वो उसे काउंटर बैलेंस करना था, क्योंकि बॉडी को रेस्ट पे ही रहना था। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगा, और वो हमारा लिमिट है, किसका, स्टैटिक का, रेस्ट पे रहने की वो हमारी लिमिट है। जैसे हम उस अलमीरा को धक्का लगा रहे हैं ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो अलमीरा मूव करेगा, तो उस लिमिट तक के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यू कैन से द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज इट इज द फ्रिक्शन acting between the bodies when bodies are just about to move। जब बॉडी क्या करने वाली है, जस्ट अबाउट टू मूव नहीं किया है, बस मूव करने ही वाला है, और उसी मैक्सिमम को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, लिमिटिंग। तो आइदर यू यूज द सिंबल FL और आइदर यू यूज द सिंबल FS मैक्स। तो लिमिटिंग के दो सिंबल हैं, FL यूज कीजिए या फिर FS मैक्स यूज कीजिए। ओके, FS है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी मोशन में है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, और रेस्ट के नीचे नीचे को कोई भी फोर्स हो सकता है, बट ये वो मैक्सिमम है जिसके जस्ट बाद बॉडी मूव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे मैंने कहा ना, टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी की स्टेट पे, और बॉडी की स्टेट पे बेसिस। तो अभी मैं यहाँ पे चलो आपको मेंशन भी कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ओके, पाथ के बेसिस पे भी फ्रिक्शन होते हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये होते हैं पाथ के बेसिस पे, बट कैटेगरी के बेसिस पे अलग अलग है, और आज हम लोग कैटेगरी देख रहे हैं स्टेट। तो रेस्ट स्टेट पे देख लिया, अब आइए जब बॉडी मोशन में आएगा, सो द सेकंड क्लासिफिकेशन, तो आप एक तरीके से इसी का सब पार्ट बता सकते हो, एंड द नेक्स्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंबल वुड बी FK। सो फ्रिक्शन का सिंबल तो स्मॉल f है, बट वो सफिक्स में आता जाएगा, तो स्टैटिक्स है तो x, लिमिटिंग है तो L, और काइनेटिक है तो K। सो द फ्रिक्शन which opposes the motion of body, वो फ्रिक्शन जो मोशन ऑफ बॉडी को अपोज करेगा, यानी ड्यूरिंग दी मोशन, और उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यानी जब बॉडी मोशन में आ जाए, तो मैंने अभी आपसे बात किया कि अगर बॉडी मोशन में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक हो चुके, बॉन्ड अभी भी बनेंगे, बट उनका बनने का जो रेट है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो उतनी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उसे लगातार तोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर बॉडी मोशन में है तभी भी फ्रिक्शन लगेगा, और अगर बॉडी मोशन में है और अगर हम चाहते हैं कि वो मोशन में रहे, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं भाई। ओके, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, बट कब तक, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे। बट एक काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, यानी बॉन्ड तो तब भी बनेंगे जब आप मोशन में हो। तो इसका मतलब अगर बॉडी को मोशन में रखना है लगातार, सो टू वांट टू बी बॉडी इन मोशन, सो टू कंटिन्यू द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे हो, और अगर आप चाहते हो मैं उसी स्पीड से चलता रहूं, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल लगाते रहना पड़ेगा।
मतलब आपकी बॉडी है मोशन में है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा। अब मान लीजिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन। कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का काइनेटिक लग रहा है, बट ये जो फ्रिक्शन है ये इस वाले लिमिट से तो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बार बॉन्ड टूट गया तो फिर उसके बाद जो उसका बनने का रेट है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा स्ट्रॉन्गनेस। तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है। तो यानी जब एक बार बॉडी मोशन में आ जाती है और अगर मोशन में चल रही है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा। अगर सरफेस वही है, बॉडी वही है, तो अगर हम इन सब में सरफेस वही है एज्यूम करें, बॉडी वही एज्यूम करें, सब कुछ वही एज्यूम करें, बस स्टेट बदले, तो आपके पास वही रहेगा। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन 2 है और मैं चाहता हूं कि मेरा बॉडी 10 से ही चलता रहे, तो मुझे कॉन्स्टेंटली 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। ओके, तो मुझे उतना का उतना तो लगा के रखना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि बॉडी 10 मीटर पे आ गई और अब चलो एक काम करो, गाड़ी का एक्सेलरेटर देना बंद कर दो, तो अगर हम गाड़ी का एक्सेलरेटर देना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग F0 2 न्यूटन कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए रिटार्डेशन होगा, धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएं तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होना चाहिए। और अगर आप सेम वेलोसिटी से चल रहे हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी उतना ही रहेगा। यानी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सम ऑफ यू आर नोन ऑफ राइडिंग द बाइक एंड द स्कूटी। ओके, कार तो अभी चलो नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता होगा, बट अगर आपने बाइक और स्कूटी चलाया तो आपको एक रेफरेंस होता है कि आप अपनी बाइक या स्कूटी की एवरेज और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपका सरफेस बहुत प्लेन हो, अगर रोड या हाईवे बिल्कुल स्मूथ हो, ट्रैफिक बिल्कुल कम हो, आप स्पीड को एग्जैक्टली कांस्टेंट रखें। अगर आप 50 की स्पीड से चला रहे हो तो 50 रखो, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेलरेटर तो दबा के रखना पड़ेगा, बट आप 50 पे रखिए। इन दैट केस आपकी व्हीकल, आपका स्कूटी, आपका बाइक जो आप राइड कर रहे हैं वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, यानी एवरेज बहुत अच्छी देगा। यानी उस टाइम आपको जो इंजन से फोर्स चाहिए वो कम से कम खर्च होगा, क्योंकि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा। गॉट इट? सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ द फ्रिक्शंस। अभी हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, बट दीज आर द बेसिक टाइप्स। सो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट 1, ये इसी का सब पार्ट है, एंड देन द 2 काइनेटिक। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ द वेरिएशंस। मीन दो फ्रिक्शन हमने पढ़े, वन रेस्ट स्टेट का और वन मोशन स्टेट का। अब इन दोनों फ्रिक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं, एंड वी हैव द फर्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, उसके लॉज को देखते हैं। ओके, बट बिफोर दैट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स। ओके, फोर्स एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं वर्सेस द फ्रिक्शन फोर्स जो हमें हुआ। तो बॉडी रेस्ट पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, क्योंकि उसे बॉडी को रेस्ट स्टेट में रखना है। तो जब तक बॉडी रेस्ट स्टेट में है तब तक जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो पहले तो ग्राफ डायरेक्टली, ओके, और फिर वो पहुंचेगा अपनी एक मैक्सिमम लिमिट तक। ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी अबाउट टू मूव होगा, और इस स्टेट को आप क्या बुलाओगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, ये आपका कौन सा स्टेट है? दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है यहां तक, यानी स्टैटिक जब तक आप रेस्ट पे हो तब तक हो, बट जैसे ही आप अबाउट टू मूव होंगे आप मैक्सिमम तक पहुंचे। इसके बाद बॉडी क्या आ जाएगी? मोशन में, और इसके बाद जैसे ही बॉडी मोशन में आई तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। और अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हो, जो मैंने एग्जांपल आपके साथ अभी डिस्कस किया, इफ यू टेक द वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट फैक्टर, तो आपका फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एक छोटा सा ग्राफ है, सिंपल सा, जो हमें वेरिएशन या हमें तीनों प्लॉटिंग दिखाता है। जब बॉडी रेस्ट स्टेट में है, दिस इज योर रेस्ट स्टेट, दिस इज योर मोशन, और लिमिटिंग, ये मोशन स्टेट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कहते हैं ना, वो एक माइन्यूट सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक बाउंड्री लाइन है जो रेस्ट और मोशन को जोड़ती है। यानी ये वो स्टेट है जहां पे बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन में, ना कंप्लीट रेस्ट में है ना कंप्लीट मोशन में आई है, बस मोशन में आने वाली है।
यही हमारा मैक्सिमम लिमिट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। अब वो जो रेस्ट का सबसे ज्यादा फोर्स है, यानी अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा। जैसे अल्मीरा को मूव करने के लिए 100 न्यूटन था तो 100 तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम उसके लॉज यानी उसके वेरिएशंस को देखते हैं, एंड दीज ऑल वेरिएशंस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, दीज ऑल आर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड। तो ये सब प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सो पॉइंट नंबर 1, दैट की लिमिटिंग फ्रिक्शन depends upon nature of surface contact। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता भी चला और ये हम लोग पहले से भी जानते थे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट सरफेस का नेचर कैसा है उस पर जरूर डिपेंड करेगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 जो हमें यहाँ पे ध्यान में देना है, और पॉइंट नंबर 2 जिसको लेके अब तक हम लोग अभी वर्क करेंगे, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली, वही वाली बात है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अपोजिट टू द फोर्स डायरेक्शन। जो आपने फोर्स अप्लाइड किया है उसके अपोजिट लगेगा और टेंजेंशियली लगेगा। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूमेरिकली limiting friction is being directly proportional to R. Now what is R? Check this out. This is the body. Body का अपना एक weight होगा नीचे की तरफ mg, और definitely body अगर सरफेस पे weight लगा रही है वो भी perpendicularly, तो एक reaction force लगेगा। So R stands for reaction force जो कि हमेशा कैसा लगता है, एक्ट्स नॉर्मली, जो कि हमेशा बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगेगा। इस बात को याद रखना। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन फोर्स पे, और रिएक्शन फोर्स अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल, अभी हम हॉरिजॉन्टल पे देख रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन पे, इंक्लाइंड सरफेस पे बाद में देखेंगे। तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे है, तो वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे आर डब्ल्यू के बराबर होगा इस केस के। अगर इंक्लाइंड हो जाती है तो R ऑब्वियसली बात है कॉस कंपोनेंट के इक्वल होगा। रिमेंबर द लास्ट इंक्लाइंड न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन यानी रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा म्यू एस। इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, जो कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, सरफेस के नेचर पे। यानी हर सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सेम रहता है, अलग अलग सॉरी हर सरफेस के लिए डिफरेंट होगा। हाँ, अगर आपका सरफेस एक ही है, मान लीजिए आप पर्टिकुलर फ्लोर पे काम कर रहे हो, आप टाइल्स पे काम कर रहे हो और एक ही ब्रांड का टाइल है और एक ही जैसा टाइल है, तो जब तक आप उस पर्टिकुलर टाइल पे हो, उस टाइल पे हर जगह म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे रेजिस्टिविटी होता था ना 10th क्लास में, विच डिपेंड्स अपॉन नेचर, वो डिसाइड करता है उसके बिहेवियर के बारे में कि भाई आप कितना अपोज कर सकते हो, तो वो डिसाइड करता है नेचर पे। और जब तक आपका मटेरियल सेम रहता था, लाइक अगर आयरन है, जब तक आयरन है रेजिस्टिविटी सेम है। हाँ, आयरन की जगह अगर आप दूसरा सरफेस या दूसरा मटेरियल ले आते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब तक सरफेस सेम है तब तक ये सेम रहेगा। ओके, और यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, FL/R। तो आप यहां से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इट मे define as what, ratio of maximum static friction to the reaction force। ये रेशियो है किसका,
I am giving the definition of static friction. So static friction, it is the ratio of what? It is the ratio of maximum static friction and the normal force or the reaction force. तो reaction force और इसका ratio है, और अगर ये इन दोनों का रेशियो तो FL क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है फोर्स है न्यूटन, रिएक्शन फोर्स ये भी फोर्स है न्यूटन, तो न्यूटन बाय न्यूटन तो जीरो। तो इसका मतलब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहां से सीखा, म्यू एस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यानी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। So this is the whole information about the static friction. ये maximum static यानी limiting friction की observation, और एक तरीके से आप बोल सकते हो हमें limiting friction का फॉर्मूला मिल गया। क्या? It is equal to coefficient of static friction जो कि डिपेंड करेगा nature of surface पे, वो हम आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड करवाएंगे, and second thing it depend upon the reaction force जो कि डिपेंड करेगा किस पे? रिएक्शन फोर्स पे। हाँ, इस केस में ये रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर है, बट वो केस टू केस बदलता रहेगा। ओके, वो इस वाले केस के लिए है वैसे, इसलिए मैंने आर को mg नहीं लिखा, हमें जब जरूरत होगी तब हम आगे करें। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कोएफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट हैज द फॉर्मूला व्हाट? म्यू एस इनटू आर। ओके, नाउ लिमिटिंग, चलिए एक और फ्रिक्शन था जिसको हम लोग और डील कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वी विल डन विद दैट, and that is your second topic is laws of kinetic friction. Again it is also practical observation based. जब हम लोगों ने इसे करके देखा, बार बार इसे स्टडी किया और प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन को निकाल के लॉज आए। तो देखो फिजिक्स में ना लॉज ऐसे ही बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले थ्योरेटिकल हुआ फिर उसका मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पहले प्रैक्टिकल होता है। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा था, रिमेंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड इन दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आपने पढ़ा तो सबसे पहला मॉडल आपका किसका था? जे थॉमसन, बट उसके बाद आपका मॉडल किसका आया? रदरफोर्ड। अगर मैं आपको ईयर बताऊं 1911 में, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो वो पहले प्रैक्टिकल हुआ, और प्रैक्टिकल होने के बाद फिर उसको जब ऑब्जर्व किया तो फिर रूल निकले, जैसे मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, होल पॉजिटिव चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। तो जब आपने उसे प्रैक्टिकली किया तो आपको पता चला अरे ये तो ऑब्जर्वेशन आ गई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें फिजिक्स में ऐसे जैसे जिन्हें पहले प्रैक्टिकल करते, फिर उनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं और फिर उनसे लॉज बना लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ इज सेम जो हमारा पहले था, दैट it depends upon what? Depends upon nature of contact surface। तो जब आप मोशन में हो तो कांटेक्ट सरफेस भी डिपेंड करता है, यानी आपका रोड कैसा है। आपका हाईवे अगर स्मूथ है तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन कम होगा काइनेटिक, और अगर रफ है तो भी ज्यादा होगा। सेकंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज independent to velocity of body। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, जब मेरा बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो वहां पे हमने देखा कि अगर हम 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं और अगर हमारा काइनेटिक 2 है और हम 10 ही रखना चाहते हैं तो हमारा काइनेटिक 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम वेलोसिटी 10 ले लें या 20 ले लें या 30 ले लें, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड अगर हमें कांस्टेंट रखनी है, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, और वो चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। बट एक पॉइंट और निकल के आया, अनलेस वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल और वेरी हाई। जब तक वेलोसिटी या तो बहुत कम क्यों ना हो, जैसे 1 और 2, या बहुत ज्यादा क्यों ना हो। अगर वेलोसिटी मॉडरेट है, इस मॉडरेट वेलोसिटी का कोई रेंज नहीं है बेटा कि मैं आपको बोलूं बेटा 10 से लेके 50 तक ही रहता है, तो कोई मॉडरेट रेंज नहीं है कि यहां से यहां तक वो बॉडी के वेट
पे डिपेंड करता है, हर बॉडी के लिए अलग है, हर कार के लिए अलग है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर कार को देख रहे हो तो जब तक उसकी वेलोसिटी बहुत कम नहीं है या फिर बहुत ज्यादा नहीं है तब तक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा। और यही आपने बाइक्स और स्कूटी को राइड करते टाइम देखा होगा कि वहां पे जहां पे आपका एक्सेलरोमीटर होता है, जहां पे आपको स्पीड दिखाई जाती है, वहां पे आपको साफ साफ दिखता है कि मिड का एक रेंज होता है 45-50, एक ऐसा रेंज होता है जिस पे बाइक अगर आप चलाते हो तो आपकी बाइक की एवरेज बहुत अच्छी आती है। अगर आप 10 की स्पीड से चलाते रहोगे तो भी वो ज्यादा तेल खाएगी, ज्यादा कंज्यूम करेगी क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और अगर आप उसे 100 की स्पीड से चलाओगे तो भी वो आपका पेट्रोल या आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगी। तो वो मिड का रेंज होता है जहां पे आप एक्सेलरोमीटर पे देखना वहां पे इकोनॉमी या ग्रीन लिखा होता है कि भाई अगर आप ज्यादा अच्छे से एवरेज लेना चाहते हो तो इस स्पीड पे चलाओ, तो वो मॉडरेट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो हमारा फिर से वैसे ही है, सो न्यूमेरिकली काइनेटिक फ्रिक्शन इज अगेन डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। और जब ये नॉर्मल रिएक्शन का कांस्टेंट हटेगा, ये अगेन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके, वही वाला आ रहा है जो पहले था, रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल लगता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम लोग बुलाएंगे म्यू के, स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विच फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इट व्हाट डिपेंड्स अपॉन अगेन नेचर ऑफ सरफेस, वो ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं बट इसको भी ध्यान में रखना, ये डिपेंड करेगा आपके सरफेस के नेचर पे। तो यहां से म्यू के का फॉर्मूला क्या बना, एफ के बाय आर। चलिए डेफिनेशन बना सकते हो खुद, दैट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड अगेन इट इज अगेन यूनिटलेस एंड द डायमेंशनलेस। फिर से ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, ओके। डन। सो हियर वी टॉक अबाउट बोथ द फ्रिक्शंस और दोनों ही कोएफिशिएंट, इसकी डेफिनेशन और ले लेना। तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला मिल गया और हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला मिल गए दोनों फॉर्मूले। अब बस दोनों फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, जीके नॉलेज बढ़ा लेते हैं। म्यू एस इंटू आर, ओके, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल बाय आर। तो देखिए आर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल केस में वेट ऑफ द बॉडी, FL stands for friction force, definitely. ऐसे ही Fk is equal to mu k into R और mu k is equal to Fk by R। तो definitely पहली बात तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी feasibly मूव करे, हम चाहेंगे कि बॉडी अच्छे से मूव करे, तो thus for feasible motion तो हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं मोशन अच्छा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन कम से कम हो। और अगर ये कम है, अगर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमेशा लेस देन 1 होगा, इस बात को आपको समझ में रखना है। हाँ, स्टैटिक का डिपेंड करता है क्योंकि वो अभी रेस्ट पे है तो उस टाइम कोई मोशन तो होने ही नहीं वाला है, ओके नाउ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो एट द एंड में आपके सामने टिक करना चाहता हूं, एंड दैट इंपॉर्टेंट इज एफएल और एफके ज्यादा कौन है, लिमिटिंग ज्यादा है या काइनेटिक ज्यादा है? तो डेफिनेटली लिमिटिंग ज्यादा है। सो सिंस एफएल इज ग्रेटर देन एफके, तो एफएल का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन म्यू के इंटू आर। और अगर बॉडी वही है जो पहले रेस्ट पे थी, वही मोशन में, तो रिएक्शन फोर्स तो सेम ही होगा। और यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिली, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमेशा काइनेटिक से बड़ा आना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल में कैलकुलेट इन फ्यूचर, अभी नहीं, आज का टॉपिक तो अंडरस्टैंडिंग है, बट इन फ्यूचर यानी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को चेकआउट करेंगे तब आपको इस बात को याद रखना है
कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से बड़ा होगा और काइनेटिक हमेशा 1 से लेस होना चाहिए अगर कैलकुलेट करना पड़ा या फिर हमें निकालने की जरूरत पड़ी। ओके, सो विद दैट नोट एंड विद दैट पॉइंट, दैट इज होल अबाउट द फ्रिक्शन इंट्रोडक्शन इन आवर 11th क्लास। तो 11th क्लास में फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन, ये आज के टॉपिक हमारे बेसिक्स थे। अगर आप इन बेसिक और इन स्मॉल फॉर्मूले या लॉजिक्स को क्लियर करते हैं, द फ्यूचर टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रोसीड। तो आगे का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये क्लियर किया। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए, कोई डाउट्स है तो क्लियर आउट कीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डीलिंग विद द फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट। तो आगे लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, बॉडी को मूव करेंगे, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी इंक्लाइन, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू विद दैट। सो प्लीज कंप्लीट अप टू हियर एंड आस्क एनी डाउट इफ यू हैव। थैंक यू वेरी मच बेटा।